Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. The news out of Brisbane is that Australia have won their game against Ireland. It was an interesting. Let's take a look at the match summary to kind of see what went down here. Australia were put into bat by Ireland. Ireland had won the toss. Australia putting up 179 for 5. It was an interesting bowling effort by the Irish bowlers because they kind of had a good start, then a bad patch in the middle, and then kind of pulled back in the end. And Finch there with that 63. Stoinis also contributing. In reply, Ireland, well, they were in trouble right from the word go, but Tucker would go home with a lot of good memories of this innings because he looked really remarkable today. Maxwell, Zampa, Cummins, Stark, everybody picking up wickets, 2 wickets each. And in the end, it was a 42 runs win for Australia. ये जरा Group 1 के पॉइंट टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं. सूरत हाल कुछ इस तरीके से Group 1 की कि New Zealand sit right on top with 5 points in 3 games. Australia with 4 games and 5 points, but their net run rate is still minus 0.30. England जो है वो कल अपना अगला मैच खेलेगी New Zealand के खिलाफ. Now tomorrow, if England can probably go up in this table if they win that game, depends. Ireland there with 4 games and 3 points. Sri Lanka and Afghanistan with 2 points each. So this is how this is still a wide open group. Nobody knows, as Misbah said earlier this morning, that this is anybody's group still to be known. तो ये है सूरत हाल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में. पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सितारे, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द गेम, पीपल हु सर्व द गेम रियली वेल. I've got the young and dashing Shoaib Malik. I've got Mr. Dependable, Misbah Haq. I've got the toe-crushing batsman terrorizing Waqar Younis, and the Sultan, the undisputed king himself, Mr. Wasim Akram. Wasim, it was a nice effort there by Ireland. I mean, you know, we thought this would be a one-sided affair. In the bits and pieces, it wasn't, and in the end, it was. Yeah, always Australia were always the favourites, as we knew even before the game. We said it, they're favourites, and good news for Australia is the captain is back in nick. He's got runs. He was struggling a bit, 63 or 43, leading from the front. But जिस तरीके से वो सोचे थे जीतेंगे और रन रेट थोड़ा बढ़ेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली उनको आयरलैंड को वो प्रेशर में नहीं ला सके. इन दी एंड वो टकर की इनिंग्स की वजह से 71 से रन रेट आपने जिक्र किया कि अभी माइनस 0.30 है मनफी. दैट्स द वर्ड. So yeah, interesting group, interesting game, good game in the end, better team won, and I think Australia looked strong apart from their openers. Generally, they struggled a bit. I mean, David Warner must be a big worry. He's one of the main players who's not getting runs. But knowing David Warner, once he gets going, he'll be unstoppable as an opener. Yes, that is true. I was just going to come to that, Waqar, with you. That do you think that the Australian batting, it seemed like they couldn't get a hold of the ball. Sometimes it did, but sometimes it didn't. So should we credit the Irish bowlers? कि वो बीच में glimpses of genius दिखाते थे, या was it the conditions? What was going on there? जब आप इतने एग्रेसिवली खेलते हैं तो देन इस तरह की सूरत हाल आ जाती है कि you lose wickets at the wrong time, and luckily I feel कि एरन फिंच ने जो जिस तरह की स्क्रैची इनिंग ज़रूर थी, इतनी कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं थी. हाँ, इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं थी, लेकिन दे नीडेड समवन टू स्टे आउट देयर बिकॉज दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो एवरीवन वाज जस्ट गोइंग हार्ड. They were looking for those big boundaries and they did hit lot of boundaries. That is why इनका इतना स्कोर हो गया. लेकिन फिंच की जो इनिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर कहीं वो के बीच में कहीं आउट हो जाते तो, क्योंकि बाकी जितने भी बैट्समैन अगर देखा जाए तो वो ऐसे नहीं है कि जो आपको रोटेट कर लें स्ट्राइक को, और इसने भी बड़े शॉट ज़रूर खेले हैं, लेकिन ही वाज मोर इन कंट्रोल rather than the others. Others are like a real big hitters. Yeah. So I think his inning जो क्योंकि इतनी important थी उनके लिए, और the superb knock. I mean, they wanted him to get back into form. Still Mitchell Marsh, I feel कि उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखी है. Yes, 2-4 आप जब छक्के देखते तो आप कहते हैं wow. Yeah. Lekin I still feel that they're still not the team which I would back, to be honest. If they might go on and win the World Cup, but they have got some flaws जहाँ पे इनको पकड़ा जा सकता है. इनका 5वें बॉलर का भी इशू है, क्योंकि एक टाइम पे तो ये बहुत जल्दी आउट कर सकते थे इनको और उनके पास रन रेट इनका बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन 5वां बॉलर कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आया. Josh Little, a lefty
Wasim, no, you're a lefty, so I thought I'll bring this to you. So Josh Little has been such a fantastic, he's looked really good throughout this tournament. This year he's been really, really good. But today, आज भी अगर आप देखें तो he was just very, very clinical in his entire operation. Yeah, he's not very quick. He definitely swings the ball, and early on he's got the wicket. Obviously, जो Glenn Maxwell की wicket इसने ली थी. But line was right, the length was right. Nothing width नहीं दी उसने. देखे ना बस इसी जगह पे बॉल किया. हालांकि इतना स्विंग नहीं हुआ. अगर गया भी है तो थोड़ा अवे की तरफ गया है बॉल. But रूट भी दिया इसने बैट्समैन को. फिर that was the wicket he got of Maxwell. Maxwell was playing short on every ball he faced. Got out about thrice. But in the end, I think a very good little spell from Josh Little. Yeah. 2 for 21 in his 4 overs. Yeah, definitely. शोएब बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था कि आयरलैंड के बॉलरों को सिवाय एक बॉलर के बाकी बॉलरों का एक प्लान था, and they were executing their plan really well. They had picked out, they had all the matchups against each batsman. I guess they planned it well, but of course we should give credit to Aussie batters. उन्होंने beginning was rusty a little bit for Warner and Finch, but दोनों अच्छी फॉर्म में नहीं है. तो इसीलिए दे टुक देयर टाइम. लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, वी ओनली हैव 20 ओवर्स और हमें जो है अपने सर्कल से बाहर निकलना है, और इसीलिए आई गेस क्रेडिट गोज टू एरन फिंच द हाउ ही बैटेड. ही पिक्ड अप लेटर, बट आई गेस उनकी रिमार्केबल इनिंग्स है. और वैसे भी जब आपका ओपनर रन्स बनाता है ऊपर से और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाता है तो वैसे ही बहुत फ़र्क पड़ता है और अपने बॉलर्स को एज मिलता है उस चीज़ का. जी, एरन फिंच ने कहा था टॉस पे कि एगर नहीं खेल रहा बिकॉज ही इज स्टिफ. I know. And the way he was running between the wickets, I thought he was more stiff than Agar. And he survived a run out in first, second or third over. और दूसरी एक और बात आज आपने सुबह की थी कि अपना आयरलैंड के जो ABC प्लान्स हैं जी वो आज दरम बरम हुए हैं. बिल्कुल दरम बरम हुए हो गए. मिसबा, गैरेथ डिलेनी, देयर वाज अ लॉट ऑफ राइड हिम कि उनके ओवर्स के ऊपर, बट समहाउ ही कुडंट रियली डू व्हाट वाज गोइंग ऑन विद हिम. वाज ही ओवर पिचिंग, वाज ही इन द रॉन्ग चैनल? आई थिंक थोड़ा सा आज मुझे लगता है कि फुल बॉल किया उन्होंने. सामने की बाउंड्री छोटी है यहाँ पे और ऑस्ट्रेलियन नोज द कंडीशन. वो रूम दे रहे थे. हालांकि स्टोइनिस स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट लेग स्पिन, जो पिक नहीं होता उनको गूगली, तो वो स्टम्प्स दिखा के कोशिश करते हैं कि बॉलर फुल आए तो मैं सीधा हिट करूं. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि वो उनको आइडिया नहीं है, बट बीच में उनको ऐसे बॉल मिले हैं जिनको बड़े आराम से उन्होंने सामने हिट मारे. रिस्क लेना नहीं पड़ा, रिस्क नहीं लेना पड़ा, और सामने की छोटी बाउंड्री थी, ओवर पिच बॉल थे, उसको उन्होंने हिटें मारी हैं. तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था आज इनके लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे. आज उन्होंने 3 ओवर में 29 रन हुए. अगर यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से आ जाती और एक आधी विकेट जैसे स्टोइनिस को वो वहाँ पे आउट कर देते तो वो उस जोन में रहता मैच 160 165 के जोन में. तो द वे आयरलैंड बैटेड, आप देखें अभी एक बैट्समैन ने सिर्फ रन्स किए और ऐसे लग रहा था एक स्टेज पे कहीं ना कहीं 165-70 तक पहुंच जाएंगे. डिफरेंट बॉल गेम होती. 179 आई थिंक इट वाज जस्ट टू मच. इट वाज आउटसाइड देयर. वो मार्क डेयर वकार बड़ी खतरनाक बॉलिंग की है उन्होंने आयरलैंड के लिए. 4 ओवरों में 60 रन दिए उन्होंने 14.75 की एवरेज से. क्या हुआ है उनके साथ आज? इज अ डिसेंट बॉलर. व्हाट वाज रॉन्ग? आई थिंक वो दरम बरम हो गया सारा मामला उनका. वो थ्रो किसी पे जब अटैक कर रही होते हैं ना, जब बैट स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस जब अटैक करते हैं तो समझ नहीं आती. उस दिन आपने हसरंगा की भी हालत देख ली थी कि जब हसरंगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, और जब व्हेन दे गो आफ्टर समवन दे नॉट वन ऑफ दोज टीम्स के जहाँ अगर एक छक्का मार लेंगे तो अगला आप दूसरा थोड़ा सा खींचा करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे. दे आर द प्लेयर्स कि अगर आपने एक बॉल एक अच्छी जगह पे की है और दूसरी बॉल आपने फिर अच्छी की है तो दूसरा भी छक्का वो मारने की कैपेसिटी रखते हैं. दे सच अ गुड हिटर, क्लीन हिटर ऑफ द बॉल. और फिर छोटे छक्के भी जो वो छोटे छोटे नहीं मारते बिकॉज दे पावरफुल, दे बिग, दे स्ट्रॉन्ग. थोड़े से टैक्टिक्स भी वकार भाई ऐसे थे कि मिड ऑफ ऊपर रख के
फुल बॉल कर दी, फुल टॉस, वो जैसे घबराया हुआ बॉलर। जब प्रकाश पड़ी हो तो यू गेट लॉस्ट, इवन एज अ स्किपर यू गेट लॉस्ट, एंड दैट्स वेयर कप्तान इतना इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में बॉलर्स के लिए। थोड़ा सा गेम को हल्का सा स्लो कर दे, ये नहीं मतलब कि आप बैठ के चाय पीनी शुरू कर दो, मतलब है कि जस्ट हैव अ 5 मिनट चैट विद योर बॉलर। पीछे कर लेते वसीम भाई, अगर फुली बॉलिंग कर रही थी तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन होती बॉलर की। प्रोटेक्शन। वेल दैट वाज द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स। अब बात करते हैं जरा आयरलैंड के बल्लेबाजों की। मिसबाह, पॉल स्टर्लिंग और कप्तान एंडी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी आयरलैंड की टीम के, लेकिन दोनों के दोनों जो थे वो मेरा ख्याल है जो टोटल था उसको इतना ज़्यादा उनके लिए हो गया था कि आई थिंक दे वांटेड के पावर प्ले को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए एंड दे फेल्ड, बट देन इट वाज जस्ट एन अर्ली कोलैप्स विद इन द पावर प्ले फॉर आयरलैंड। बिल्कुल, आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। 179 जब बोर्ड पे लगा हो तो आपके लिए ज़रूरी है, एक तो अच्छा स्टार्ट आपके लिए ज़रूरी है, फिर पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी है। जब एकदम ही आपके 5 आउट हो जाए तो फिर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बेसिकली इन द गेम। एक बंदा फाइट करेगा, कितनी देर वो खेलता रहा, उसने थोड़ा बहुत मैच, नीचे भी कोई पार्टनरशिप नहीं। तो आई थिंक कि वो पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था पहले 2 ओवर्स में, बट अगेन चॉइस ऑफ शॉट्स, आई थिंक the way the captain played in the last game. Let's talk about that choice of shot. ये जो Paul Sterling वाली shot थी, I don't think that was his strength, was it? That's not his strength. वो I think उस सिचुएशन को अच्छा प्ले किया ऑस्ट्रेलियन टीम ने। थोड़ी सी वो उस साइड की बाउंड्री बड़ी थी। ये खेल रहे हैं पॉल, अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने। पहले ओवर में उनके कप्तान ने एक छक्का भी मारा और ये चौका मारा, और जैसे ही उन्होंने बड़ा अच्छा देखा, एरन फिंच ने देखा कि फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने जिसको कहते हैं कि चांस लिया मैक्सवेल के साथ, और थोड़ा सा ऑफ साइड की फील्ड ऊपर रखी। इधर की बाउंड्री छोटी थी, मिड विकेट की बाउंड्री बड़ी थी। हालांकि आप देखें छक्के कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वो माइंड सम टाइम बैट्समैन का होता है, वो जो स्ट्रेंथ से वो हट के उन्होंने देखा कि उधर की बाउंड्री बड़ी, इधर ना मारूँ, मैं इस तरफ को मारूँ, और उसने बड़ा सेंसिबली स्लो बॉल किया, थोड़ा सा टर्न किया मैक्सवेल ने, और 2 विकेट्स लेके उसने मैच ऑलमोस्ट सेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। सॉरी शोएब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? आई गेस ये टक्कर के साथ टेक्टर, कैंपर या डॉकरल, ये अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगती साथ में उसके, तो मुझे लगता है कि ये जो 179 वाला टारगेट था, ये भी एटलीस्ट हमें एक सनसनीखेज मुकाबला आखिरी बॉल तक जा सकता था ये गेम, बिल्कुल जा सकता था। अगर ये मेरे ख्याल में 20-20, 25-25 रन की भी आउट ऑफ 3 गाइस, कैंपर, डॉकरल या टेक्टर में से कोई खेलते तो चांसेस थे कि वो करीब जा सकते थे टारगेट। आई थिंक जो आज अगर मिचेल स्टार्क को देखा जाए ना, तो मिचेल स्टार्क आज पुराने मिचेल स्टार्क थोड़े से नजर आएंगे। वो जो बॉल वापस आया और पेस भी आज 146 पे बॉल कर रहे थे, तो आई थिंक दैट हैज़ मेड ऑल्सो अ बिग डिफरेंस। और जो मलिक बात करना कि ये पार्टनरशिप लगती यहाँ पे, ये अगर वो सेंसिबल खेलते, स्पेशली जो जहाँ पे स्टर्लिंग आउट हुआ ना, वो ओवर जो था दैट वाज वेरी डैमेजिंग, क्योंकि दैट वाजंट द ओवर वेयर यू लूज 2 विकेट्स। ये जो स्टार्क ने जो ओवर किया उसमें 2 विकेटें गिरी, वन कैन अंडरस्टैंड, 2 good deliveries, he was just there fast, you know, that over was very very quick. Watch that, I mean इस बॉल को हैंडल करना is not that easy at that pace. ये पूरा ओवर ही बहुत अच्छा था, you know, good pace, and he's still there, he's still gonna do the job, that's his job, and इनकी टीम ने इनको ये पूरा कहा हुआ है कि this is what you're gonna do, nice and full, and if it swings you're a lethal, you can break anybody's backbone there. I think Tank को भी थोड़ा सा credit देना चाहिए. He was struggling in the first game. I will not be surprised मलिक कि अगर इसको next match में वो नया बॉल दोबारा दें, because they were waiting for this rhythm to come back. Waqar, the rhythm was there, but even then he got taken apart for 43 runs in 4 overs today. 2 विकेटें तो नहीं है उन्हें. इसकी जो डेथ बॉलिंग थी, again स्विंग नहीं हो रहा था, नॉर्मली रिवर्स हो रहा होता है तो आप भी करते हैं मिड ऑफ ऊपर रख के, वो कोशिश कर रहे थे ऑप्शन के बाहर फुलर करने की, और वहाँ जो है उन पर अटैक हुआ और रन्स हुए। आई थिंक इट्स अ कंसर्न फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली डेथ ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग किसी से भी नहीं हो रही। कमिंस भी अंडर प्रेशर हैं, उनसे भी नहीं हो रही, और नॉर्मली स्टार्क पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आखिर के ओवर्स में, और यहाँ पे उनसे भी बॉलिंग नहीं हो रही। तो स्टार्क एक ऐसा, वसीम भाई, आई डोंट नो, यू विल प्रोबब्ली टेल बेटर, लेफ्ट आर्मर, इसकी ना पेस तो है, पेस ठीक है, बाउंस भी अच्छा था जब ये तेज़ गेंद कर रहा होता है, लेकिन इसने आज बहुत सारे स्लोअर बॉल किए हैं,
और स्लोअर बॉल ये जब करता है ना तो इसका बहुत वाजे नजर आता है, इसका जो बॉल हाथ में होता है ना उसका बहुत जब इन दी एक्शन वो बता देता है कि इट्स अ स्लोअर वन कमिंग, सो यू कैन टेल वसीम। या एग्जैक्टली, विकी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट पिक किया। मैं भी ये देख रहा था जब ये यूजुअली जो स्लो बॉल करते हैं लेफ्ट आर्मर्स, जैसे शाहीन करेगा लेग ब्रेक, वो ऐसे भागेगा। अगर वो ऐसे भागेगा और फिर एंड में आके जब बाजू यहाँ आएगा तो फिर इसको खोलेगा, यहाँ से आके फिर वो करेगा। ये पहले से ही ऐसे भागता है। जब पहले से ऐसे भागते हो तो बैट्समैन को पता है कि इसने लेग कटर करना है, तो वो पिक कर रहे थे उसको बहुत पहले, सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉल। वसीम भाई ये मुझे लगता है कि तो फ्लोट कर रहे हैं बॉल को, जैसे ऐसे फेंक देते हैं, वो जो मारना होता है ना वो मुश्किल है। स्लो बॉल मारे 2-3 और स्लो हुए भी हैं, लेकिन बट डिडंट लर्न फ्रॉम दैट। जो सामने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट्स लगे हैं वो ऐसे वो फुलर गए और बिल्कुल उनमें कोई जान नहीं हो रहा होता एज अ बॉलर। आई मीन ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज बीन प्लेइंग सिंस 2006-7 ऑनवर्ड्स, प्रॉब्ली अर्लियर देन दैट। सो इस फॉर्मेट में जब अगर आपको यॉर्कर नहीं लग रहा या स्विंग नहीं हो रहा, फिर प्लान बी पे आना पड़ता है इन पिचेस पे। तुम बैक ऑफ अ लेंथ करो, वो फील्डर है पीछे रखो, स्क्वायर लेग वाला और फाइन लेग दोनों पीछे रखो, वही बैक ऑफ अ लेंथ करो, स्पेशली अगेंस्ट एसोसिएट प्लेइंग ऑन दिस बाउंसी पिचेस ना, अगर तो बाउंसी ना हो तो फिर तो मैं समझ आती है। और दूसरा ये है कि अगर इसका बॉल अच्छा हो रहा है, स्विंग हो रहा है, so why to keep him only for 2 overs or 1 over? Just carry on with him and he might just get you 2 or 3 wickets there. 2 ओवर का स्पेल स्ट्रगलिंग बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स, तो इसीलिए ना, और वैसे भी जो हेजलवुड है उसकी भी सिमिलर काइंड ऑफ लेंथ है जैसे पैट कमिंग्स की है व्हेन इट कम्स डाउन टू बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स। वो ज़रा थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ रखते हैं और उनकी वेरिएशन भी वैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। That is why I said it in the opening statement कि I wouldn't back this team because I see a lot of flaws जिस bowling में ना, especially even fielding में भी थोड़े से flaws मुझे आज दिखे हैं कि वैसे ओके टीम कैन पकड़ सकती है। स्पेशली जब अंडर प्रेशर बड़े मैच में डिफेंड कर रहे होंगे और मैच कहीं फंसा होगा एंड के ओवर्स में, आई थिंक इनकी डेथ बॉलिंग जो है वो वल्नरेबल नजर आई है, कोई भी एक्सपर्ट, क्योंकि मिडिल ओवर्स भी ऐसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल, मिडिल ओवर्स में फिफ्थ बॉलर नहीं है तो देर ओके कि अगर कोई 7 एन ओवर या 8 एन ओवर खेल रहा है इट्स फाइन, लेकिन जब आपकी डेथ ओवर्स भी स्ट्रगल करना शुरू कर दें फिर you're not safe. All right, so we can see there are some chinks in the armor of the defending champions Australia. We're going to talk a little bit more about this game when we come back from this break. You're watching the Pavilion. This is A Sports and 10 Sports. Keep watching. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're talking about the Ireland-Australia game today. Australia winning that one, putting up 2 more points on the table. And Ireland, they must be happy with their performance because it wasn't a one-sided affair. There were glimpses of genius from the Irish, both bowlers and batsmen. अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले मिचेल स्टार्क की बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा वकार के in his 4 overs he gave away 43 runs. And then we were all talking about कि डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको बॉल करने की, शायद बॉल रिवर्स नहीं हो रहा। ये इनका 4th ओवर जो आखिरी ओवर उन्होंने कराया, ये आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये इनका जो स्विंग का डिग्री है ये चेक करें। पहला बॉल 1.8 degrees, 1.9, you can see the movement of the ball. Oh, that also swung. Yeah, the full toss. Full toss. Yeah. This is not a reverse swing. I think this is a natural. This is 4th over. Inning का 4th over, not his 4th over. My apologies. It's a normal swing. We can tell by the way he's swinging the ball, the way he's holding the ball. वो रिवर्स स्विंग होता है तो ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है आपको एज अ बॉलर। सो आज सपोज पाकिस्तानी बॉलर्स या मोस्टली बॉलर्स जिनको रिवर्स स्विंग का पता है, इसको भी आती है अच्छी। जब रिवर्स स्विंग से यॉर्कर क्यों अच्छे लगते हैं, चाहे इतनी सी भी हो रही हो, बिकॉज आपके पास कंट्रोल है, आपको पता अगर शाइन अंदर है तो इसने अंदर ही आना है। नॉर्मल स्विंग पे जब शाइन बाहर होती है, कई दफ़ा प्रेशर में बजाय रिस्ट हल्की लगे ज़्यादा लग जाती है, वो क्रॉस चला जाता है, फुल टॉस हो जाता है। दैट्स व्हाई बॉलर प्रेफर्स रिवर्स स्विंग। मिसबा टकर रियली प्लेड अ गुड इनिंग्स टुडे। बड़ा उन्होंने बिल्ड किया अपनी इनिंग्स को, हालात को मद्देनजर रखते हुए, जिस प्रेशर में उनको डाल दिया गया, एक साइड से विकेट्स जो थी वो गिर रही थी, एंड इट वाज एज इफ ही वाज इन इट टू विन इट। ही वाज लाइक ट्राइंग कि यार ये किया जा सकता है ऑल द वे। आई थिंक लग रहा था, आई मीन 15वें-16वें ओवर तक ऐसे लग रहा था कि वो चेस करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मैच में थे उस टाइम पे भी। बट ऑब्वियसली फ्रॉम द अदर साइड वो जब इतना बड़ा आप टारगेट चेस कर रहे थे, कोई हेल्प नहीं थी। द वे ही अटैक्ड एवरी बॉलर,
उस सिचुएशन में इतने आउट हुए, 6 आउट हैं और आप एक तरफ से अटैक कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे। और कुछ शॉट्स तो बड़ी क्लीन हिटिंग की है, बड़ी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, गैप्स के बीच में से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है उन्होंने, डाउन द ग्राउंड शॉर्ट बॉलों को। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो जो मलिक हमेशा बात करता है कि पूरा ग्राउंड यूटिलाइज़ किया। आप देखें कि इनसाइड आउट भी मारे हैं, फिर पैडल स्वीप भी, रैम शॉट मारी है, ये मिड ऑफ ऊपर रखा है तो वो उसके ऊपर से उन्होंने शॉट मारी है। तो ओवरऑल इट वाज नॉट ओनली द हिटिंग, इट वाज सेंसिबल बैटिंग। जब अगली टीम की 6 विकेटें गिरी है, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है ये, हेजलवुड, कमिंस एंड मिचेल स्टार्क। अब जो लास्ट शॉट अगर आपने देखी हो वो हटा है तो ऑब्वियसली एज अ बॉलर आप उसको फॉलो करते हो, वो मुंह में नहीं आया, वो यॉर्कर नहीं हुआ तो उसने मिड ऑफ ऊपर थी, इनसाइड आउट मार दी। तो आप ये फाइन लेग स्क्वायर लेग पीछे लेके उसको पीछे क्यों नहीं फॉलो करते, स्पेशली जब 6 विकेटें गिरी हुई हैं। वसीम भाई उससे पहले अगर आप देखें उसने बहुत अच्छे पुल शॉट भी मारे हैं, देखे जब फॉलो किया। तो दैट्स व्हाट एज अ बैट्समैन यू नीड टू डू। जब आप प्रेशर डाल देते हैं बॉलर को, यार फॉलो किया है तो आपने पुल मिड विकेट या स्क्वायर लेग के फील्डर्स के बीच में से मार दिया, देन द बॉलर इज अंडर प्रेशर कि भाई इधर करूंगा तो ये तो मुझे छक्का ही मार देगा। एंड यू हैव टू जस्ट कम बैक उस अपनी स्ट्रेंथ पे या उसकी स्ट्रेंथ पे। सो ये शॉर्ट बॉल नहीं था जो पुल मार, बड़ी अच्छी शॉट थी पुल, बट इट वाजंट अ शॉर्ट बॉल। ये जब प्रॉपर शॉट बॉल जब आया तो जब ये अंदर था तो 35 पे 5 थे, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे दे वर एक्सपेक्टिंग दिस, समटाइम ऐसा होता है ऑफ गार्ड आप पकड़े जाते हैं और फिर आप ना यू जस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू गेट अ विकेट रादर देन डिफेंसिव मोड में। तो किसी वक्त गए ही नहीं वो, उनको डिफेंसिव मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टक्कर ठीक है बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन दूसरे एंड से कोई ना कोई आउट हो जाता था तो उनको इतनी फिक्र नहीं थी। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि जब ये प्रेशर पड़ेगा, जब आपको डर होगा कि यही 3 विकेटें गिरी होती, मेरा मतलब है 15वें ओवर में, तो ये डिफरेंट बॉल गेम होती। फिर उनकी बॉलिंग की जो स्टाइल था या वो जो बॉल करते जिस लेंथ पे करते वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। एक चीज आज देखने को मिली कि मिचेल स्टार्क राउंड द विकेट नहीं गए, नॉर्मली वो जाते हैं राउंड द विकेट। ऐसे ही है, तो मुझे ये लग रहा है कि ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट हिज रिदम बैक, ताकि वो जो उनका आज कुछ हमने ग्लिम्पसेस देखे जहाँ बॉल स्विंग हो रहा था लेकिन सारे स्विंग नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि ही इज बीन स्ट्रगलिंग टू गेट हिज रिदम बैक। And let's not forget Adam Zampa and Glenn Maxwell, they bowled really well. So it was the spinners that were actually kind of the key there for Australia. Also, I guess we must give credit to Adam Zampa. He was struggling with COVID और अभी आया वो। I've seen him practicing indoors और ये है कि all the credit to him because अगर वो 4 bowlers से खेल रहे हैं मेन तो वो they are relying a lot on Adam Zampa कि get us wickets in the middle, ताकि एक एंड से अगर आप थोड़ी से हल्के bowlers आ रहे हैं तो दूसरे एंड से कोई attacking bowler रहे। तो I guess we must give credit to Zampa and Glenn Maxwell, even though he hasn't been scoring runs, Maxwell, but he's been taking wickets. तो मेरे ख्याल में he brings a lot to the table and this is why कि कोई ना कोई बाहर आता है ऑस्ट्रेलियन टीम में से परफॉर्म करता है और टीम को जिताता है। आई थिंक ही वाज द की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने उस टाइम पे। अगर वो जो मोमेंटम था उसको ब्रेक ही मैक्सवेल और इसने एडम जम्पर। वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली अपनी गुगली पे रिलाय करते हैं, लेकिन आज अगर देखें इस पिच पे किसी और का उस तरह स्पिन नहीं हुआ, लेग स्पिन हुआ और बाउंस हुआ और अच्छी पेस पे हुआ है, जिसकी वजह से मौका ही नहीं मिला आयरलैंड के प्लेयरों को वो कैसे उसको अटैक करें। आई थिंक मिस भाई ये जो एक ओवर जैम्पा ने जिसमें 2 आउट किए हैं ना, वो कोई ओवर इतना अच्छा नहीं था। इट्स जस्ट दैट ही वाज लिटिल बिट लकी आल्सो, दोनों गेंद पीछे गिरे हुए थे, दोनों को इतने अच्छे दे कुड हैव प्लेड इन द गैप, क्योंकि पावर प्ले के अंदर फील्डर अंदर थे। आई थिंक वाज जस्ट पुअर शॉट्स। और यस ऑफ कोर्स जब आपको इस तरह का ओपनिंग मिल जाती है एंड देन एज अ बॉलर, ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर यू बिकम अ डिफरेंट बीस्ट। स्मार्ट कैप्टनसी एज वेल, स्मार्ट कैप्टनसी के जब वो पेस पे एडजस्ट हो गए बैट्समैन तो immediately he brought 2 spinners from both ends. तो I guess credit to captain as well. So यही तो कप्तानी है T20 की, इस फॉर्मेट की, कि आपने उसी वक्त मौके पे चीज़ें चेंज करनी है। एक प्लान आप बना के आते हो अपना एज अ कैप्टन कि जी पहला ओवर ये करेगा, दूसरा ये करेगा, एंड देन अगर वो 2-3 ओवर में फड़कास पड़ जाए देन यू हैव टू कम अप टू प्लान बी, एंड इफ दैट्स नॉट वर्किंग देन प्लान सी। दैट्स व्हाट कैप्टनसी ऑल अबाउट इन दिस फॉर्मेट।
और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने सवालात हमारी तरफ भेजना शुरू कर दीजिए। आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन, ये अभी आपको नजर आएगा हैशटैग, ये हम आपको चला के दिखा देते हैं। हैशटैग आस्क द पवेलियन, ट्विटर के ऊपर आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, आई विल बी आस्किंग आवर लेजेंड्स इन द स्टूडियो। And the way forward, let me take this to Waqar. What's the way forward for Ireland? Where are they playing next? I have no idea. So you got to give me an idea where they're playing next. So question किया तूने question पूछ लिया. No, but I need to know where they're playing. If I know where they're playing, what field they're playing, and what sort of pitch is there, then of course I can comment better. But yeah, of course they got to look to play better cricket. I mean, they made mistakes today. They were good in certain areas, but those 4 wickets they lost in the middle. I think उनको कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा जहां भी वो नेक्स्ट खेलें। And that was the way forward. और दोस्तों इस वक्त हम लेंगे एक और वक्फे के बाद आस्क द पवेलियन के सवालात आप लोगों के लेकर हम आएंगे अपने लेजेंड्स के पास। So keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY's app. Ask the Pavilion, hashtag, send us your questions. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now the news out of Brisbane is that Australia have won their game against Ireland, putting up 2 points. The defending champions move on, but the group still remains wide open. With me in the Pavilion, I've got the legends, the monuments of cricket. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. और अब शुरू करते हैं दोस्तों आस्क द पवेलियन का सिलसिला, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवालात आते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, and we want to get them out as many as possible. So let's start off with ये है जनाब एडवोकेट चौधरी आबिद, ADVCH Abid 5511 आपका ट्विटर पे आपने सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम, my question from the 2 greats, great W's. I'm a medium fast bowler, right-handed. My outswing is natural. What should I do for in-swing and increase my speed? Please take my question to panel and fittest Malik for diet plan. All right. You want to bring, he's a right-hand medium pacer, natural outswinger. How can old is he? That I He don't hasn't know. given much to us, has he? थोड़ी एज वेज बताएं फिर उस तरीके से खैर बेसिक तो आप बता कर दें आप। मतलब थोड़ा कई दफ़ा होता है नेचुरल आउटस्विंगर, बेसिकली आउटस्विंग रिस्ट से होती है ना, ठीक है। अब नेचुरल आउटस्विंग जो है वो कुड बी डन विद एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, राइट, और वो एक्शन माइट नॉट सपोर्ट द इनस्विंग। मलिंगा भी करता था आउटस्विंग। हाँ, वो आउटस्विंग करता था ना, यहाँ से तो हो सकती है, वहाँ से इनस्विंग करना अनलेस इज रिवर्सिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो जब तक एक्शन ना देखा जाए उस टाइम कोई कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट बेसिकली बेसिक ऑफ क्रिकेट या बेसिक ऑफ फास्ट बॉलिंग जो टेक्स्ट बुक यही कहती है कि इफ़ द सीम ट्रैवलिंग टूवर्ड फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप आपके हाथ से, तो तब उसको गेंद को बाहर जाना चाहिए, और उसको वो उसी सूरत में होता है कि जब आपकी जो रिस्ट है बॉल के पीछे रहे। सेम गोज इज टोटली ऑपोजिट। अगर तो आपका जो सीम ट्रेवल कर रही है टूवर्ड द लेग स्लिप एंड योर रिस्ट इज स्टिल बिहाइंड बट शोड ऑफ कटिंग इनसाइड द बॉल, कटिंग इनसाइड द बॉल, इनसाइड अगर कट करेगी तो वो बॉल अंदर को आएगा। बट देन ऑफ कोर्स उस पर मैं ज़्यादा उनको नहीं बता सकता, वो इसलिए कि आई डोंट नो हाउ इज एक्शन इज, हाउ ओल्ड ही इज़। फिटनेस ऑफ कोर्स, ये हमारे फिटनेस फ्रीक यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे। बट ये आप बॉलिंग लंबी करते रहो फिर तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। पेस की बात की, शोएब मलिक से पेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? वो उसी तरह बता सकते। देखिए कुछ लोग होते हैं कि उनकी इंक्रीज हो सकती है, कुछ की इंक्रीज नहीं हो सकती। चाहे आप जैसा एज लिमिट है ना, सर्टेन एज लिमिट की नहीं बात, एक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका एक्शन क्या हो सकती है पेस मेरे ख्याल में, उसके बाद फिर आपकी फखर भाई बता सकते हैं पेस का। देखिए एक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। ऑर्डर करते हैं वो खाना पड़ेगा। आज जब ने की और 3 डिशें ऑर्डर की थी और ने आपसे सिर्फ आपके लिए मांगी थी वो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। आई डोंट नो व्हाई आप लोग मेरे मगज में और मेरे उसमें का ऑर्डर वो भी भूल गया आधे रास्ते में, क्योंकि चीजें ही बहुत सारी थी। और दूसरा फिटनेस की जो बात की है वो ऑफ कोर्स मलिक ने कल आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया आई थिंक, लेकिन रिमेंबर दैट इज मलिक्स डाइट, दैट्स नॉट अ फास्ट बॉलर्स डाइट, रिमेंबर दैट। You have to be eating a lot of meat also in that. Go on, Malik. Discipline फाके करके मर जाओ। ये अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो वो एक दिन का डिसिप्लिन नहीं चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए आपको जब तक आप एथलीट वाले प्रोफेशन में हैं। तो आई गेस डाइट प्लान आपका बहुत आप खुद ही आपको समझ आ जाएगी अगर आप थोड़ी रूटीन बनाएं
और वो ऐसी रूटीन होनी चाहिए कि यार अगर मैं कार्ब्स ले रहा हूँ, कार्ब्स जो हैं जैसे रोटी चावल हैं या मैश पोटैटो, स्वीट पोटैटो बाय द वे शकरकंदी है जिसको हम कहते हैं। और उसमें यह है कि अगर तो आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और साथ में आप अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भाई, फिर आप सब कुछ खाओ, हाँ तली हुई चीज़ें बस ना खाओ, उसके अलावा आप सब कुछ खाओ। शकरकंदी मसाला नींबू भी निचोड़ो। नेक्स्ट दही कितों आ गई भाई? आपने बोले ना मसाला, उधर बात पता क्यों नहीं हुई, क्योंकि पानी आ गया था मुंह में। एक्चुअली शकरकंदी वो मसाला एक्चुअली उन्होंने इशारा कर दिया अंदर वो उनको। हाँ जी, वो नहीं, इन्होंने इशारा नहीं किया, इन्होंने अंदर बोला हाँ जी तुझे समझते गए हो। ऑलराइट जनाब, शहरियार अली का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई एंड वकार भाई, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल नहीं है मेरा। आई वांटेड टू आस्क यू गाइस इफ देयर आर एनी फनी स्टोरीज रिलेटेड टू शाहिद अफरीदी एंड शोएब अख्तर एज दे बोथ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट विद यू अंडर यू गाइस। हाँ जी, आई मीन दोनों जब आए थे दे वर यंग किड्स, हमारे सामने तो मजाक कम ही करते थे आई सपोज, बट जनरली they were naughty kids, शरारतें कभी कभी करते थे, अपने एज ग्रुप में रहते थे. So it was fun captaining Afridi, Shoaib Malik. Shoaib Malik was a little more naughtier than Shahid Afridi, discipline-wise, but again, one of the fastest bowlers I think I've seen in world cricket. Funny story, अब याद नहीं है यार, it was long time ago. को आएगी तो मैं during the show I will repeat it. If Vicky remembers. शायद अफरीदी का आप लोग जानते ही होंगे, हम तो सारे जानते ही हैं कि when he first arrived at the scene, he was only what 15-16 years of age, and a very strong 15-16 years of age. You know, उसके पहली दफ़ा जब मैंने उससे हाथ में लाया था तो literally आपको पसीने आ जाते हैं because he squeezed it so hard. इसीलिए इतने शायद बड़े छिक्के भी उसने मारता था. तो हम लोग इंडिया टूर पे थे. I still remember. I know the name of the minister, one of their minister, but I won't take the name. But he came to see us and welcome us, and हम लोग सारे बैठे थे तो वो he came, we all stood up कि जी आए हैं जो वो, and he met everyone. I remember that. And you know उनका पूरा डेलीगेशन था पीछे साथ तो हम सबको हेलो. अब ये आगे शाहिद अफरीदी खड़ा था, जूनियर था तो थोड़ा एंड पे खड़ा था. तो बिकॉज एवरीवन सॉफ्टली यू नो बीइंग द एल्डरली मिनिस्टर, सो बड़े आराम से मिला रहे थे. तो अफरीदी कहता देखना भाई, लिटरली उसने उन बुजुर्गों से हाथ मिलाया है. बुजुर्गों से हाथ मिलाया जैसे आप मुझसे हाथ मिलाइए. तो उसने हाथ मिलाया तो आप शायद अफरीदी हैं तो आपने दबाया ना तो उसको the guy literally went just flat. And heart attack हो चला था. सीने. And I'm telling you, this is no joke. Shahid Afridi, I mean, he's still, when you shake hand with him at this age also, he's got a handshake that's very strong. Yeah. अब गले भी मिलने तो वो भी आपकी पसलियाँ जो है ना थोड़ी सी दब जाती हैं. तू तो नहीं मिली तो बेहतर है तेरे लिए तो बिल्कुल. मैं पता कैसे उनसे मिलता हूँ यूँ करके. और जनाब अगला सवाल है उमैर इब्राहिम का. और उमैर इब्राहिम कहते हैं कि क्या ये हैरानगी की बात नहीं है कि एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर टीम का कोच है सकलैन मुश्ताक और पाकिस्तान टीम में एक भी ऑफ स्पिनर प्लेयर नहीं. वो आई डोंट नो हाउ टू व्हाट डू वी रिस्पोंड टू दैट. मिसबा, आई टेक दिस टू यू. देखिए ऑफ स्पिनर होगा आपके उस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं या सिस्टम में है ना, तो फिर ही है ना. इफ्तिखार तो कर रहा है बॉलिंग, ऑफ स्पिनर तो है ना. इफ्तिखार तो कर रहा है, पार्ट टाइमर है ना. ओवरऑल रेगुलर ऑफ स्पिनर जो आपकी उस सिस्टम में कोई होता है तो फिर आप उसको कह सकते हैं. अब कोच के घर से तो नहीं कि वैसे भी मुझे लगता है कि अगर हम देखें सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं दूसरी टीम्स में भी देखें, अश्विन को निकाल के मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम में कोई ऑफ स्पिनर है. हाँ मैक्सवेल है, ये पार्ट टाइमर्स हैं. तो ये फॉर्मेट में ऑफ स्पिनर को जो है ना, अनलेस आप दूसरा करते हो तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट है टीम की. लेकिन अगर आप दूसरा नहीं करते, आप ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है तो इस फॉर्मेट में. When you came into the team, you came in as an off spinner, and then you developed into a batsman. तो क्या हुआ कि आपने ऑफ स्पिन करनी छोड़ दी या बहुत कम कर दी, बिल्कुल ओकेजनल और बैटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गई?
देखिए उस दिन मैं एक स्टोरी सुनाने लगा था लेकिन आप लोगों ने मौका नहीं दिया। चलो अब दे रहे तो शॉर्ट एंड स्वीट। मेरे पीछे पड़ जाते हैं इसलिए मैं कोई मजाक ही नहीं करता। अच्छा अभी ये तो मजाक नहीं करते। ओके ये अभी मजाक नहीं करते, ये जरा चेक करें। तो पेप्सी क्लिनिक कैंप लगा था तो उसमें मैं जब गया उस कैंप में तो मैं गया था एज अ बैट्समैन। तो वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जब नीचे वाले बैट्समैन आते हैं बारी करने लोअर ऑर्डर वाले, तो उन्होंने कहा कि जी अब बॉलर्स ख़त्म हो गए थे, थक के खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जी कोई पार्ट टाइमर है, मैं पता नहीं क्या गुमसुम था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा क्या करते हो, मैंने कहा ऑफ स्पिन। जिसको कुछ नहीं आता उसे ऑफ स्पिन ज़रूर आती है। तो मैंने कहा जी ऑफ स्पिन, मैंने बॉलिंग शुरू कर दी और वहाँ से वो बैटिंग से हटते 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 मैं बॉलर बन गया। लेकिन जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो एज अ बैट्समैन ही की थी। ओके ऑलराइट फेयर इनफ, दैट्स अ गुड वो। अच्छा जनाब मिसबा आपसे सवाल है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान 446 ट्विटर हैंडल। माय क्वेश्चन टू मिसबा, कैन अब्दुल्ला शफीक बी कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन फॉर द पाकिस्तान मिडल ऑर्डर बैटर इन T20 and ODIs? His technique is solid and can play glorious shots. His T20 and PSL innings have proven he can play with good strike rate while remaining in the basics. Ask the Pavilion. This is for you मिसबा। आई थिंक मेरा अपना पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वनडे में आप कर सकते हैं क्योंकि उस स्पिन को भी उतना ही अच्छा खेलता है और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और उसको स्ट्राइक रोटेशन भी आती है। टेक्निक अच्छी है, किसी भी कंडीशन में खेल लंबी इनिंग वो खेल सकता है। नो डाउट कि उसने मिडिल ऑर्डर में T20 में रन्स किए हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर वो उस तरफ जाएगा तो उसकी टेस्ट और वनडे अफेक्ट होगी। तो बेहतर ये है कि उसको अगर टेस्ट पे वो फोकस करे और वनडे में भी आप उसको नंबर 3 भी या 4 खिला सकते हैं। हालांकि ओरिजिनली वो ओपनर है। But he himself probably wants to play T20 format. क्वेश्चन Everybody wants to play T20 format. एक क्वेश्चन आई थिंक एज ए ओपनर वो खेल रहा है। आप उसने पिंडी में एक 100 किया था नंबर 4 पे, पहला डेब्यू ही था उसका जी। मैं नहीं उसने किया था नेशनल T20 में, नेशनल T20 में डेब्यू मैच था उसका T20 का। और आपने नंबर 4 खिलाया था इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल। क्यों खिलाया था? नहीं मैं नहीं कह रहा क्यों खिलाया था, लेकिन आपने खिलाया था उसको। मैंने उसको खिलाया था क्योंकि उसने उसमें टॉप स्कोरर था, उसको लेके आए थे, बस एज एन ओपनर लेके आया था। उन्होंने सवाल किया कि मिडिल ऑर्डर में। ओके मिडिल ऑर्डर खेल सकता है वो एज एन ओपनर। ही कैन कम मे बी लेटर ऑन इन द और जरूरत है ओपनर नहीं इन कैरियर इन हिज कैरियर। आई एम जस्ट सेइंग आई थिंक एनीबॉडी कैन डेवलप। सानू तो हुन वंडने चाहिए ने। ही इज प्लेइंग रेगुलरली फॉर लाहौर कलंदर्स एज एन ओपनर और पिछले साल उसने परफॉर्म भी किया है। लेट्स सी। जो उसकी एज है वो बिल्कुल उस इम्प्रूवमेंट वाली एज है और आई गेस वो तीनों फॉर्मेट्स खेल सकता है, बट ये इंडिविजुअल पे आता है उसे। इट ऑल कम्स डाउन टू यू। ऑलराइट सलमान खुर्शीद का सवाल है वकार से। पहले ये कर दें तो सलमान खुर्शीद आज पेविलियन में क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम वकार यूनिस। यू वर द कोच इन 2010 when Abdul Razak scored century versus South Africa and won the game last wicket. What did you say to him when he was going into bat? ये वही वाली अब्दुल रज़ाक की इनिंग है। 109 किया था 72 गेंदों के ऊपर उन्होंने। पाकिस्तान उस वक्त जब वो गए थे बैटिंग करने के लिए 136 पे 5 खिलाड़ी। लेकिन उसे कहा होगा था मैं पूरी देख साग दी दवागा कि मैच जिताएगा। He loved his साग. He loved. नाराज हो जाए। Okay. मैंने उनको क्या कहा था? मैंने उनको कहा था जाओ और मैच जितवा कर आओ। बस इतना ही कहना था। इतना काफी था। That's all you had to say. I mean, Abdul Razak was a great player. I mean, जितना talented Abdul Razak था as a bowler, as a batsman, maybe not as talented in the field, but batting bowling में he was outstanding. उसकी कुछ innings ऐसी हैं कि जो unforgettable हैं और ahead of his time, जो आजकल probably अगर T20 में होता he would have been one of the best all-rounders और जो हमें कमी महसूस हो रही है वो बड़े आराम से पूरी कर देता है। He was a great hitter of the ball and then when it comes to bowling 135, 140 on a good day he might just bowl 142, 143. Yeah. Good reverse swing bowler, so he had all the tools to play T20 cricket अगर आज का पालक के बाद 145 वकार भाई मेरे ख्याल में मैंने पालक को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं? उसी में नहीं याद करा। वकार भाई मैं भी था टीम के साथ, तो वो ऐसी इनिंग वनडे में उस सिचुएशन से जैसे आज वो अकेले खेल रहे थे टक्कर, वो अकेले खेले थे एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो सिंगल भी नहीं रहे कि भाई दूसरी तरफ से बंदा उधर ही रहे और सिर्फ वो छक्का खेल रहे। ये बड़ी बाउंड्रीज नजर आ रही है इन कंडीशंस में, ये उनके लिए छोटी थी। एंड अबू धाबी That's a great compliment by the way. अबू धाबी में छिक मारना
सिक्सर मारना और स्पेशली अगेंस्ट द विंड जो दूसरी साइड है ड्रेसिंग रूम की, बड़ा ही मुश्किल था। जो भी वो बल्ले पे आ रही थी वो छक्के ही हो रहे थे। वसीम भाई पालक आपने क्यों पालक की बात की? हाँ, ये पालक क्या है? वो आप एक स्टोरी अक्सर सुनाते होते हैं। I'm not telling this story. Why I people want to be friendly with my buddy. No, he will be friendly. He's not going anywhere. He's He's a upset. good kid. No. उसको अब मुझे वो पूरी स्टोरी याद आ गई। स्टोरी पे हल्का फुल्का मक्खन लगा लो। अब उस सेंसरिंग के साथ और थोड़े पैरामीटर्स के साथ। ऑलराइट दोस्तों, ये मजीद स्टोरी आते रहेंगे। ब्रेक में इनको बनाते हैं। ब्रेक में हम बनाने की कोशिश पनीर डाल लेते हैं। हम अभी ब्रेक में वसीम को बनाने की कोशिश करते हैं। आज तक पेविलियन के सवालात का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दीस मैसेजेस। बड़ी ज़्यादती है अगर आप Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in this Pavilion, I've got the legends themselves. Got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. आज से Pavilion का सिलसिला जारी है, मगर उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं। आज के दिन 1990 में वकार यूनिस ने 12 विकेटें हासिल की थी। 7 for 76 and 5 for 54 against New Zealand in Faisalabad, making Pakistan win that test match. Good job, sir. Yeah, this was a series where he's got 30 wickets, if I'm not mistaken. Test match, 3 test में 3 wickets. Long time back. Long time back. 93 it was, I remember. आज generally आप सुनते नहीं हो कि कोई fast bowler, especially in pitches पे 3 टेस्ट मैचेस में 30 आउट करे। सो 10 टेस्ट मैच विकेट अ टेस्ट मैच, दैट वाज इनक्रेडिबल। मोहम्मद उमर का सवाल है पैनलिस्ट से कि आप लोगों के ओवरऑल करियर के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो आप ना बना सके हो, जो आप दिल से चाहते हो कि आई विश आई हैड मेड दैट रिकॉर्ड। लेट्स स्टार्ट विद यू वसीम। या मेरा था कि मैं ब्रायन लारा का जो 502 का रिकॉर्ड है ना वो अद्धा से तोड़ दे तो अद्धा तो तोड़ लिया था। that I wanted, yeah. 2-4 दफा और अटेम्प्ट करके हो जाता सारे का सारा। वकार, for you? Look, I don't have any, regret. No, not regrets, but you know, I mean, ये रिकॉर्ड होता क्या कर सकते थे? I mean, sometime आप रैंडम सवाल कर लेते हैं। मुझे मैं रैंडम सवाल नहीं है, याद नहीं, फैंस नहीं वो that is right, but वो अब एकदम आप प्रेशर पड़ता है तो याद तो नहीं आती कुछ। आप कह रहे हैं अब टेस्ट 100 करना था आपने। टेस्ट 100 वो मेरा कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। wanted to नहीं, वैसे बैटिंग का मुझे शौक था, लेकिन ख्वाहिश 100 करना मुझे मालूम था मेरी इतनी सख्त नहीं है, तो वो नहीं था ऐसा कभी भी। मुझे स्लिप में खड़े होने का बड़ा शौक था। मैंने वसीम भाई की कप्तानी में इनके बड़े तरले किए हैं एट टाइम्स कि मुझे फर्स्ट स्लिप में ही खड़ा कर दें। इन्होंने कहा नहीं। because I knew what? I saw him in first club. वो एक टूर मैचेस पे स्लिप में जाते थे। मेरा नहीं ख्याल है एक भी कैच पकड़ा हुआ। मेरी गल सुनो, अगे 9 थी, फिर कहते 6 न रह जाती। मैं एक दम मैं खड़ा हुआ था। वो मिसबाह न्यूजीलैंड के मैच में एक में खड़ा हुआ था। आमिर सुहेल ने गेंद किया, तेज बॉल किया था। मैं अपने वो स्पेल करके खड़ा था अभी फर्स्ट स्लिप में, तो आई थॉट के स्लिप में इतना तेज नहीं आता लिटरली एंड आई वाज लाइक स्टैंडिंग। पहले ऐसे थे, मैं ऐसे किया है। उसने ना वो लड़का जो भी बैट्समैन था उसने आके ऐसे कट मारा, एज लगा। अल्लाह की कसम, ना मेरे हाथ हिले ना मेरा मुंह हिला, मेरे गेंद इधर आ गई। नहीं, लेकिन आप उस स्लिप में क्यों गए थे? रेस्ट करने गए थे या बाकी? आइडिया वाज टू रेस्ट। नहीं, आइडिया तो रेस्ट का ही था, लेकिन शौक भी होते थे। देखिए, लगता है कि स्लिप पे जो लोग खड़े होते हैं वो रेस्ट कर रहे हैं या इट्स ईजियर। इट इज़ काइंड ऑफ ईजियर अगर आपको स्लिप पे कैचिंग करनी आती है। इट्स इतना तेज कैच आता है, इवन फिर भी इजी नहीं है वसीम भाई। इट्स नॉट, यू हैव टू कॉल। देखो फाइन लाइक थर्ड मैन पे आप स्पेल के बाद चले जाओ, यू कैन वॉक अराउंड, हैव अ सिप ऑफ वाटर। उस स्लिप में आपने तो जब बॉलर ने आना, यू हैव टू, हमें बताया गया था कि आपने बैट्समैन की शुरू में एज पे देखना है। सो यू लाइक फोकस के, स्पेशली फास्ट बॉलर पे वो एज लग के बॉल और तेज आता है। फनी स्टोरी है, सुना लो। या प्लीज। ये अब आपने स्लिप की बात की, आपके यहाँ बॉल लगा। मेरे ना कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ 2001 में, 2004-05 में एल्बो ऑपरेट हुई। ऑपरेशन से पहले ना मेरे बॉलिंग एक्शन पे जो है वो इशू हो गया, इतराज़ था। वो क्लियर नहीं हो रहा था एक्शन, और मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। मुझे सिर्फ एज अ बैट्समैन नहीं खेलना था टीम में, ऑलराउंडर। इवन दो आई वाज स्कोरिंग रन्स, लेकिन मुझे ना वो सताती थी वो चीज़। हम इंडिया टूर पे थे, मैंने ना फ़ोन किया वहाँ SG फैक्ट्री,
तो मैंने उनको कहा कि मुझे कीपिंग ग्लव्स भेजे सारा सामान ना। So you wanted to become a keeper also? जी सर, आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आल्सो। Good. अच्छा, कामी था दूसरा। कामी ने मुझे 2 दिन देखा ना प्रैक्टिस में। I can already imagine. क्या हुआ लो जी, साइड मैच आया हमारा हैदराबाद, वसीम भाई। अब ना वो अनइवन पिच थी, तो कामी मुझे ऐसे तू कीपिंग कर, साइड मैच है, तो मैं चला गया, हफीज बॉलिंग कर रहा था। वो यकीन करे कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस की हुई थी। मैं यूं करके बैठा हूँ, वो कहीं वो नहीं कहते बुच्चियाँ मुलाकात और पिच थे। वो कहीं लगा बुच्ची पे बॉल, और मैं जितनी देर में उठा ना, इतनी देर में वो मेरे यहाँ बॉल लग गया हुआ था। अच्छा, 3-4 मैंने यहाँ खाए, 3-4 मैंने यहाँ खाए। 3 ओवरों के बाद ना मैंने कामी को इशारा किया बाहर। मैं कहा यार कामी आजा। वो बाहर से क्या कर, अंदर ही रहा तू। अब मैं वहाँ जान छुड़ा रहा, और मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैप्टन की, थोड़ी मेहरबानी पेसर ला दो। तो आई कैन इमेजिन जब आपको यहाँ बॉल लगा होगा ना, डूब कर भप की आवाज़ आती है, मुझे पता है। मुझे नहीं लगा, मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह तब स्लिप में फील्डिंग की जब ऐसा यकीनी तौर पे ऐसा बॉलर होता था जिसको मुझे पता होता था गेंद कभी कैरी नहीं करेगा, 2 टिप्पों में बाद में ना मैंने कामी की बड़ी इज्जत की है। यार तू बहुत बड़ी बात है, तू कीपिंग करता है। मुझे सामान हुआ था साइड में, पता क्या कहता है, यार ही नहीं है कि अग्गू ना सोची। मैं क्या वकार भाई, आपको याद होगा टेस्ट मैच में गयाना में, वेस्ट इंडीज़ में, जब स्लिप में मैं फील्डिंग कर रहा था, तो वो पिच ऐसी थी, बड़ा अनइवन बाउंस था। आगे आते थे तो 2 बॉल इधर से निकल जाता था, पीछे गए 2-3 आगे गिर गए। तो वकार भाई ने मुझे लंच पे कहा कि यार ऐसा करो, चेंज करके देख लो, किसी और को खड़ा कर दो। नाम ठीक है जी। मैंने हफीज और उमर अकमल को खड़ा कर दिया स्लिप और गली में। जी 40 रन हो गया पीछे, 3rd मैन पे, शहीद अजमल पे। वो जो जाए वो मेरे कम से कम मैं बॉल रोक रहा था, पीछे नहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं वो रन्स नहीं हो रहे थे। जब 5-6 चौके पीछे लगे हैं ना वाटर में, तो बस यार तू ही खिलो जा, कम से स्कोर तो रुक। Oh man, great memories here shared on the Pavilion exclusively. Naeem Shahzad का सवाल है मिसबाह उल हक आपसे, sir, which is your favorite ODI innings that you played for Pakistan? I think न्यूजीलैंड में नेपियर जो सीरीज डिसाइडर था, 93 नॉट आउट किया था मैंने उस पर। दैट वाज वो सिचुएशन ऐसी थी कि दूसरी तरफ से सारे आउट हो रहे थे, और जाहिर है हमारा वो डिसाइडर था सीरीज़ का। So that was the inning जो मैं हमेशा रेट करता हूँ ODI में। वो पिछला क्वेश्चन भी ना 2 लोगों की रह गई थी, वो भी प्लीज़ बता दें। वसीम भाई और वकार भाई ने तो बता दिया था। क्या चीज़? हाँ, आपने कोई रिकॉर्ड जो आपका नहीं हुआ वो भी बता दें, आपका मिस हो गया था मुझसे, प्लीज़। रिकॉर्ड मेरे ख्याल में एज ए होल एक जिस तरह आपका ड्रीम भी ख्वाहिश होती है कि ODI का आप वर्ल्ड कप जीतते, वो एक ख्वाहिश थी जो नहीं पूरी हुई। रिग्रेट एक होता ODI वर्ल्ड कप जीतना एज ए टीम, क्योंकि T20 भी जीते, टेस्ट में भी नंबर 1 हुए, बट ODI का वो नहीं हो सका। सो एक ये चीज़, और दूसरा मेरे से हमेशा वनडे की सेंचुरी लोग कहते हैं, क्योंकि हाँ मैंने कहा रिग्रेट मुझे ये नहीं है कि मैंने 1 सेंचुरी नहीं की, 1 सेंचुरी करने से बेहतर है कि मैंने नहीं की। एक रिकॉर्ड है मेरे को, करता तो 10-12 करता। गुड आंसर श्वेब। मेरा यही है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, 1 चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, बस एक ये चीज़ है जो मुझे मतलब कभी कभी आती है दिमाग में। ODI वर्ल्ड कप। That is fantastic. All right, we've got Huma. Huma 384. I don't know, Khari, आपका Twitter handle है. Wasim Akram, this is a question for you. Huma is asking, Wasim, your new book, when and how can we get it in Pakistan? Can we order it online? And when is it actually due for release? So, Wasim, that should be it. Huma. It's the launch is on the 16th of November. 16 November. 16th November in Australia, and I think you can pre-book on Amazon if you want to. But 16th के बाद I think available हो जाएगी. Interestingly, by the way, Wasim, I don't know if you know this or not, but I was checking something that in pre-booking Amazon,
your book is #1 right now, top selling, #1. Really? Yes, nice. yes, that's the. अभी तो आई भी नहीं, so that's a good sign. That's what I'm saying, pre-booking, because if you go to pre-book as bestseller, #1, Amazon. Okay. Sultan. Thank you. Sultan, well done. Well done. All right. Okay. Then we go on to the next question. और ये है खानजादा अदील रावलपिंडी से KM अदील जावेद तनोली इनका नाम है. My question is for Misbah and Shoaib Malik. Where is Amir Yamin? He's playing first class cricket. Where? अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या where is Amir Yamin? He's just picked up 9 wickets, I think, in one of the 4-day games. Yes, he just picked up. All right. And he's been performing. Good all-rounder. Good all-rounder. And where is he? वो ये पूछ रहे हैं. Address, कोई pin location, drop pin. ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है. I know that's for sure. We all know that he's not in Australia. I know exactly what you're saying, Miss. एक हमारे question आया है. He wants Sir, रखे सवाल रखें क्योंकि break लेनी है. He wants the address or he wants question है. डेढ़ क्वेश्चन है. Break से पहले ये डेढ़ क्वेश्चन सुन लेते हैं. ये मोहम्मद रमज़ान है जो कहते हैं कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ. अगर आप जर्नलिस्ट हैं रमज़ान भाई, तो आप कम से कम सेंसिबल क्वेश्चन तो पूछ लें. तो तेनु जर्नलिस्ट कितने बनाते हैं? ये सवाल क्या कर दिया? मिसबाह भाई इतना स्लू क्यों खेलते थे? Just a random question. The idea is to ask cricketing questions, not past में ये क्या क्यों करते थे. So next time रमज़ान please हमें कोई sensible question भेजो तो आपको अच्छा जवाब दे सके. Well, there you have it. This is the Pavilion. Ask the Pavilion और आपके सवालात का सिलसिला जारी रहेगा. मेरे साथ हमारे चारों लेजेंड्स मौजूद हैं. आप लोगों से मुलाकात होती है इस वक्त के बाद. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. Continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Earlier today, Brisbane में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त दी और ग्रुप 1 में अपने लिए 2 मजीद पॉइंट्स हासिल किए. And we'll have 2 more games. आज से पवेलियन का सिलसिला शुरू है. ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आया था. वसीम भाई, आपने वो सवाल किया था. था वो मिसबा से, पता नहीं आपने क्यों जवाब दिया. मिसबा आप स्लो क्यों खेलते थे? अब जवाब देते. अब आप इसका जवाब दें असल में. ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ. Okay, all right, very good. Acha Janab, you know we've started taking questions from YouTube as well because हमने नोट किया है कि YouTube के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है आपकी सब देखने वालों की जो सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक से, and we get a lot of questions and some very lovely and kind comments from across the world, including India. So thank you all for watching and thank you for all the kind words and we do look at the issues that you point out कि जहाँ पे हमसे गलती हो रही है, जहाँ पे हम improvement कर सकते हैं, and we try to. We have some limitations and within the resources we try to do our best. ये सवाल जो है ये आया है प्रदीप का. मुथु प्रदीप इनका नाम है. इन्होंने सवाल किया है YouTube से आपसे. He doesn't. So he says, dearest Wasim Akram sir. Dearest Wasim Akram sir. लेकिन जब आप ब्रेक में बहुत खाए ना तो ये छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. अच्छा. Dearest Wasim Akram sir, I am a South Indian. I hardly understand Hindi, let alone Urdu. I watch A Sports just for you. You are one of the reasons why I fell in love with this great game. In your shows, you guys mention a lot about pressure. Please explain how difficult is it to execute something with and without pressure. I would love if you could explain it with anecdotes from your glorious career. So, first of all, hi Pradeep. Thank you very much for watching the Pavilion. Just not for me, I suppose for all of us. Pressure in sport is always there, and in life is always there, and every day is a different pressure in life and in sport. In cricket, if you talk about cricket, different scenarios, different circumstances, different situation, and same in life. You go through different stages of life, you get different stresses, different pressures, and how to handle that pressure. I suppose you've got to be prepared, mentally strong, physically fit. Prepared means if you're doing something, make sure you've done your homework properly, and then if you have an exam, obviously if you don't study, you'll fail. And so you view your proper homework for your job, think ahead. Think ahead. And I think you guys are very organized in South, one of my favorite places in the world. I love the food there as well, and people are very, very friendly. So pressure, you can't get used to, but yes, you can perform under pressure as long as you believe in yourself and your hard work. All right, thank you Wasim, really nicely done. Noshirwan, आपका सवाल है. Noshirwan,
I'm sorry, Nushaira and something like that is the name. But आपका सवाल शोएब मलिक से है कि are you interested to coach the Pakistan under-19 and you know it would really help. Would you like to coach Pakistan under-19? Well, I'm still playing cricket and I'm enjoying my cricket. So far I have no plans to coach any team or after retirement. After retirement, to be honest, no. I don't want to get into coaching. Let me explain to viewers. Coaching is a very different skill, am I right? In any sport, it's not that it doesn't matter कि आप कितने great player थे किसी भी sport में. It doesn't mean you automatically become a great coach. So उसके लिए आपको hard yards करने पड़ते हैं. उसके लिए आपको coaching नीचे से शुरू करनी पड़ती है. Get to know the people, and of course, most importantly in coaching is management skill. All right, fair enough. This question has come, this question has come from Anand. Anand is writing from New Delhi. Okay. Hi, I'm from New Delhi. I would like to request Mr. Waqar. He was telling about power hitting the other day. I tried what he said and have found a little bit of difference in my hitting the ball. I would really appreciate if he could give some more details on your show. Waqar, this would really help. In fact, you know, we have some images that you also put up. वो images भी आज निकाल लेते हैं. And I think, Waqar, you could give another demo. The good thing is that he'll understand Hindi and he'll understand Punjabi also because he's from Delhi. Yeah. So we can also add quickly some Punjabi in let this be the last thing that we do today. Why don't you get over there, Waqar, and show us through this and show us the images that you have. वो images जरा ले आइए, Waqar, आप बोलते हुए जाएं वहाँ पर आपने जो images select किए हैं वो किस वजह से की हैं? Hold on to the images. Right. Let me just sort of tell you what exactly I've meant before and All right, ladies and gentlemen, Waqar Younis on power hitting. इन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया था और अभी आनंद ने न्यू दिल्ली से हमसे ये सवाल पूछा कि उन्होंने खुद ये अटेम्प्ट किया है जो उन्होंने टेक्निक बताई थी और ऑलरेडी उनको रिजल्ट्स मिले हैं. So now he wants him to elaborate more. I wish कि he could have given us more on Twitter कि क्या-क्या उनको challenges हैं. But go ahead, Waqar. देखिए उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो modern day batting है, modern day hitting है, especially when you get into the back end of the T20 or back end of 50 over cricket, white ball cricket, तो मैंने जो बहुत major जो noticeable चीज़ उस दिन भी explain की थी कि cricket batting has become more like a golf hitting. जिस तरह golf की hitting होती है ना, golf में क्रिकेट में जो कन्वेंशनल बैटिंग है जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स बताती है वो कहती है कि यू जस्ट स्टैंड इन योर स्टैंड्स एंड यू मेक श्योर यू स्टे अपराइट एंड देन यू यूज दैट फ्रंट शोल्डर एंड दैट एल्बो टू जस्ट स्टे इन द लाइन ऑफ द बॉल टू हिट ऑन द ग्राउंड. जस्ट प्ले व्हेन आप जब ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं यू मेक श्योर यू हैव योर एल्बो नाइस एंड हाई एंड दैट इज व्हेन यू प्लेइंग in the first 10 overs or when you're playing in the first maybe 15-20 overs in ODI cricket. When it comes to the back end, आजकल के modern cricketers, मैंने कुछ images भी उस दिन निकाले थे और मैंने वो probably दिखाना चाहूँगा कि why do I say this कि golf की जो है जो normal ये images Waqar, golf we have Razak, Lara and Afridi. Can you explain these images please? देखिए ये तीनों मैं समझता हूँ कि these three were way ahead of their time जब ये लोग cricket खेलते थे. शायद अफरीदी Brian Lara बीच में and then Abdul Razak. I said it just earlier also कि Abdul Razak why he was so destructive, why Lara was so destructive, why Afridi used to hit long balls, why Maxwell hit so long, why you know all these guys they hit so far. आजकल के जो छक्के 98 meters, first of all they're very fit, they're very fit. These guys they have big muscles. And then what they do is आप इनमें और शायद अफरीदी की और रज़ाक की और लारा की सिमिलैरिटी यही देख रहे हैं कि इनका जो फ्रंट शोल्डर है दैट ड्रॉप्स एंड वी स्पोक अबाउट इट द अदर डे कि ये जब ये शोल्डर आपका ड्रॉप होता है तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी जो दो बेसिकली गोल्फ में दो मूवमेंट्स होती हैं. एक आपकी ये शोल्डर की मूवमेंट होती है, एक ये पावर है, एंड देन देयर इज़ अ हिप पावर. देयर टू पावर्स कम इनटू प्ले जब आप गोल्फ खेलते हैं. तो मॉडर्न डे क्रिकेटर जितने भी हैं आजकल के दे मोस्ट ऑफ देम दे प्ले गोल्फ एंड दे वेरी गुड एट इट. यू नो मैक्सवेल आई प्लेड विद हिम फ्यू टाइम्स, ही हिट्स द बॉल 350 yards at ease. So basically once again this look at that, ये images both. Yeah, Hardik Pandya, we all know that how far he hits
And then of course once again Maxwell का on the right, the picture आपको नजर आएगी जो front shoulder है, once you clear your front leg and then they drop the front, अपना जो front shoulder है, when you drop that, that means you also bringing this momentum, this one, and also the hip into it. टांगों का weight shift होता है? Of course weight तो shift होगा ही होगा, क्योंकि आप जितनी इतनी power position में ये सब खड़े हैं कि when they there, they drop this, and then they bring this one, this power, and then of course their hip power. So and then you release the club, जिसको golf में कहते हैं just to release the club. आजकल के जितने भी batsmen हैं, they don't stop here. They go boom. Follow through. Follow through. Just they finish there. So that is the key for me. When you, और मैंने ये अपने भी प्लेयरों को नोटिस किया था कि जब हम हिटिंग कर रहे थे एक टाइम पे in England, and our boys were not dropping that. Our boys were not really doing that. And I feel maybe, you know, in coming days after the World Cup going forward, and दिन जो हम under 19 की बात कर रहे थे कि हमें जो bunch को निकालना चाहिए, we should try to sort of teach them कि this is one thing I feel कि this is important and should come into play, कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि you know how to hit long balls. It's not all about muscles, but it's all about technique also, and weight shifting and power going into the shot. Brilliant. Thank you so much, Waqar. Stay right there, and we are going to take a break right here on the Pavilion. And when we come back, there's going to be more on the other side. Don't go away. Keep watching 8 Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं 8 Sports and Sports. Wise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. It's Ask the Pavilion right now going on. We have your questions coming up and the answers from our legends. अब से कुछ देर पहले वकार जो थे वो हमें पावर हिटिंग के बारे में बता रहे थे. And I hope कि हमारे जो दोस्त हैं न्यू दिल्ली में आनंद, I wish you all the best and I hope you get better results with that. And all the other young people who are watching this as well. ये अगला सवाल जो है ताहिर नियाजी की तरफ से आया. आज पवेलियन में पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. Love to hear Agha Bata stories. Great. May I ask Misbah and Shoaib to recall their partnership during the 2007 T20 World Cup against Australia, please. Tahir Niazi from Scotland. वहाँ लग सकती है. फिर मिसबा भाई जरा बताएंगे. क्या लग सकती है वहाँ? ये जो 2007 वाला हाइलाइट्स नहीं भाई, इस उसके राइट्स होते हैं. राइट्स होते हैं. आई थिंक मैं थोड़ा सा उसको मलिक तो खैर पहले खेल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट, और मैं क्योंकि मेरा पहला वो बड़ा टूर्नामेंट था, कमबैक हुआ था और ऑब्वियसली डिफरेंट उसमें था फ्रेम ऑफ माइंड में, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. उस स्टेज पे प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त थी. एक स्टेज पे हमारे आउट भी हो गए, और उस पार्टनरशिप में आई थिंक की यही था हमारे जो की वो हमने वो जो प्लानिंग है हमारी, मुझे याद है अभी तक कि 5वां बॉलर नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास, और दे यूज्ड टू बॉल, आज तक नहीं है उनके पास. दे यूज्ड टू बॉल क्लार्क, साइमंड्स, वो मिलजुल के. तो हमने उस टाइम पे हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो यही थी कि 5वें बॉलर को नहीं छोड़ना हमने, वो जो मर्ज़ी है बाकियों को हमने 7-8 करना है, बट 5वां बॉलर जैसे ही आएगा तो विल जस्ट गो आफ्टर. मुझे याद है क्लार्क ने ओवर करने, क्लार्क आया तो मलिक ने, वो सामने था, इसने उसको 22 रन कर दिए. देन दे हैव टू होल्ड बैक. उन्होंने फिर मेन बॉलर लेके आए, ब्रेटली, मिचेल जॉनसन, उनको हम नॉर्मली खेले, आराम से दौड़ के रन्स कर रहे थे. फिर थोड़े टाइम के बाद वो साइमंड को लेके आया, तो एंड्रू साइमंड मेरे सामने आया, मैंने एंड्रू साइमंड को 16 कर दिया जिसमें रिवर्स स्वीप हो रहे. तो दैट वाज हाउ वी, वो जो कैलकुलेशन थी, वो जिस तरीके से रिस्क लेना है और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट. ऑस्ट्रेलियन एक टाइम पे जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी, क्योंकि वो वेरी फिट एट दैट टाइम, कैंप करके गए थे हम उस टाइम पे भी एबटाबाद में, और एक्सट्रीमली फिट थे. मुझे याद है कि हमारी तरफ थ्रोए मारने शुरू हो गए वो. माइकल क्लार्क, साइमन, दे वर बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. वो बिल्कुल यहाँ आके खड़े हो गए, और हम सर्कल पे, एक सर्कल पे तो कहीं भी उनके पास जाता तो एक थोड़ा सा सर्कल के बीच में गया, थोड़ा सर्कल से बाहर, वो ग्राउंड भी छोटा है वॉन्डर्स, तो हमने दौड़ के 2 कर लिए. तो उसके बाद समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने थ्रोएं इतनी ज़ोर से गुस्से में शुरू हो गए. तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया उस मैच में, द वे वी बैटेड एंड फिनिश द गेम.
अच्छी चीज़ ये थी 3 आउट हो गए थे हमारे ऊपर से जल्दी। अच्छी चीज़ थी। नहीं उसके आगे आ रही है, पहले बुरी आती है फिर अच्छी आती है। अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे 3 आउट हो गए थे। उसके बाद जो था वी वर चेजिंग 160 ऑड रन्स और जाहिर बात है एवरेज हमारे सामने था, तो अच्छी चीज़ ये आ रही है कि हम पहुंचना है तो कोई बड़ी यादें हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो स्पेशल निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ स्पेशल मोमेंट था वो जो We won that game? यस we won that game, और उसमें वो 109 मीटर का या 111 मीटर का ब्रैकन आ छक्का गया था सामने ब्रैकन को। ऑलराइट जनाब, आबिद सईद कुरैशी का सवाल है। आबिद सईद कुरैशी ट्विटर पे पूछ रहे हैं, वसीम भाई टेल अस योर फीलिंग्स at stumps on the 4th day of test match at Calcutta in 1999 Asian Test Championship. What was going through your mind? ये बताता चलूं कि पाकिस्तान ने ये मैच जो था 46 रन से जीता था और सईद अनवर की हमने इस मैच में एक तो वकार को ड्रॉप हुआ था, शोएब आया था. It was a very tough decision for me as a captain to actually do that because being one of the bestest bowlers ever, the fastest as well. But at the time I thought कि शोएब was younger, वो खेले नहीं थे हुए तो उसको खिलाया. टॉस जीत के पूरी प्लानिंग हुई टीम की कि पहले बैटिंग करेंगे. स्ट्रेंथ जब लोग पूछते हैं ना कि टीम बैटिंग करें बॉलिंग करें, पहले तो आप पिच देखते हो, पिच के अलावा आप टीम की स्ट्रेंथ भी देखते हो. स्ट्रेंथ क्या है टीम की? स्ट्रेंथ अगर बैटिंग है तो आप काइंड ऑफ डिफेंड करते हो, आप चेज करते हो. अगर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप डिफेंड करते हो. तो हमारी स्ट्रेंथ उन दिनों बॉलिंग थी. ग्रेट सकलैन मुश्ताक ने चेन्नई में भी 10 आउट किए, फिर उसने आई थिंक कैलकाटा में वो दिल्ली में भी आउट किए जहाँ कुंबले 10 आउट कर गया था एक इनिंग्स में. तो आई थिंक 26 में 5 आउट थे फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच एट कैलकाटा. 25 for 6. I don't know exactly, but something like that. Then Moeen got 70, I got 40. We get to 230 odd. उन्होंने हमसे कोई 40 की लीड ली और फिर सेकंड इनिंग थर्ड इनिंग हमारी सेकंड इनिंग में आई थिंक 8 आउट कर गया श्रीनाथ और सईद अनवर अकेले ही खड़ा रहा. आई थिंक ही कैरिड द बैट. ही स्कोर्ड 188, one of the best innings I've seen from one of the greatest players, openers Pakistan have produced, Saeed Anwar. India needed 65 to They win needed on day 5. 260 something to win the test match. Yeah. And there were a couple of time बहुत था. Yeah, I know. And 5 आउट हो गए हुए थे. 5 उनके आउट हो गए 5 थे. आउट हो गए हुए थे एंड देन वो जो आखिरी दिन पे 65 रन थे, 5 विकेटें थी उनके पास. और गंगूली was playing on 60 odd. Yeah. So रात सुबह जो हमारी छोटी मोटी चैट होती है, I never believed कि long meetings because tours पे लड़के वैसे ही तंग आए होते हैं. अगर आप मीटिंग लंबी कर दो तो जो 10 मिनट की बात होती है पहले वो सारा कुछ भूल जाते हैं. सो शॉर्ट एंड स्वीट. तो मैंने उन्हें कहा था कि लुक वी नीड 1 विकेट एंड वी विल विन दिस टेस्ट मैच. एक बिलीफ से कहता है ना, कप्तान विकी ने भी किया, सब ने किया. बिलीफ बड़ा ज़रूरी होता है. चाहे आपके अंदर आप ना मान रहे हो बट आपने अपनी टीम को बताना है कि आई बिलीव दिस. लीडरशिप. सो आई थिंक आई बॉल्ड द फर्स्ट ओवर, रिवर्स स्विंग हो रहा था, एक स्लिप खड़ी की. अजहर महमूद वेरी गुड, वेरी सेफ स्लिप फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट इन फैक्ट. और तो बाकी फील्डर खोल दी बिकॉज वो सेट बैट्समैन था. मैंने कहा इसको सिंगल कर देते हैं. बट लकीली आई थिंक पहला बॉल जिसम खोल तो लगता उस वक्त 99 में 34 के हो गए हुए थे हम 35. सो आई थिंक पहला बॉल किया और दूसरे बॉल पे भाई ने एक ही स्लिप थी मार दी और अजहर महमूद ने टुक अ कैच एंड देन शोएब अख्तर आई थिंक क्लीन इट अप. Clean it up ये and उनका Pakistan डेब्यू won. मैच था शोएब भाई का. यस कैलकाटा. इसमें उन्होंने सचिन को डक आउट किया था. ये छोटी सी स्टोरी है. थिंक सो. नहीं डेब्यू 97 हुआ था. इंडिया में डेब्यू था इनका. पिंडी में हुआ था. नहीं बट इंडिया में इनका वो था, पहला था. पहला इंडिया में पहला मैच था क्योंकि 3 दिन पहले शोएब भाई, शायद भाई और 1-2 और लोग थे वो बाहर खाने पे गए हैं. तो ये मुझे थोड़ी स्टोरी याद है तो मैंने कहा चले सुना दें. अब उस टेस्ट मैच की बात आई है तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने ऑटोग्राफ लिया लाला से और मेरा ख्याल है अजहर भाई से लिया. तो अब इनकी तरफ ना उन्होंने बच्चों ने पूछा शोएब भाई से कि अंकल आपका क्या नाम है. तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद टेस्ट मैच था. तो इन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद सिर्फ आप मेरा नाम ले रहे होगे, जहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैच में पहले बॉल पे सचिन को आउट किया. That's the confidence. Sebi the genius. Sebi, well done. That's Shoaib Akhtar for you. That's definitely Shoaib Akhtar for you. All right, gentlemen, there is the other business that we have to take care of, and that's the ICC Men's T20 World Cup. Tomorrow we have 2 more games. 2 games आपकी खिदमत में कल हम लेकर आ रहे हैं. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. पहला मैच कल सुबह पाकिस्तान टाइम 9 बजे जो है वो शुरू होगा और ये है अफगानिस्तान बामुकाबला श्रीलंका.
दूसरा मैच जो है वो आपकी खिदमत में होगा और ये बड़ा मैच है, बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। ये है इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड। याद रहे कि इंग्लैंड बहुत प्रेशर में है और न्यूजीलैंड बहुत डेंजरस टीम नज़र आ रही है। तो ये दो मैचेस कल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। सुबह 7:30 बजे पेविलियन में हमारे चारों लेजेंड्स जो हैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और प्रोग्राम का बाकायदगी से जो है वो करेंगे। इस वक्त मेरे पास एक ओके सो हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई जो हैं उनको रूल आउट कर दिया गया है वर्ल्ड कप से। किस वजह से ये डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, बट सो कल अफगानिस्तान भी अंडर प्रेशर आ जाएगा अगेंस्ट श्रीलंका बिकॉज ही वाज वन ऑफ देयर बिग गन्स एंड विद दैट ये वसीम अकरम ये करते हैं मेरे साथ दोस्तों, ये देखें आप उनका हाथ कहाँ आया होता है। विद दैट आई विल से थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू शोएब, थैंक यू मिसबा, thank you Waqar, and thank you Wasim, and thank you Fakhr, and we will see you all back here tomorrow morning at 7:30 AM Pakistan Standard Time. मैं हूं फख्र आलम, ये है द पेविलियन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup। सुबह 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। सुबह 7:30 बजे।